So good afternoon, everyone. Today in this class, we will continue our discussion on the topic of circles. We will start from where we left it that day. Okay. So we started with the, first of all, we started with the concepts that we had already learned. We had already learned some of the concepts about the circle. We learned what is the chord of a circle. We first of all we learned what is a circle. Then further we went on and we learned lot of things, major segment, minor segment, and lot more things about the circle. Then what we learned that interaction of a line with the circle. So now we saw that there can be three cases possible. The first case in which a line cannot touch the circle at any point. The second case can be when the line will touch the circle at two different points, and the third case is when the line is not and when the line is touching the circle at any one point. So the second case is called as a secant, and the third case is called as the tangent. Now further we learned about different properties of tangent. The first property that we learned is is that that a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This was the first theorem that we learned, that a tangent to the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Then we learned also the converse of the theorem, that a line drawn through the end of the radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. This what we learned. This what we have learned. Next, what happened? Next, we learned about the number of tangents from a point on a circle. किसी भी external point से किसी भी circle पे हम कितने tangent draw कर सकते हैं. About this we learned. We learned that there are three types of this thing. There are three cases possible. One case is case one, when we have the point is lying inside the circle. Another case is when the point is lying on the circle, and the third case was when the point is lying outside the circle. So we found that in the first case we cannot draw any tangent. In the second case we can draw one tangent to the circle, and in the third case I cannot, in the third case I can draw two tangents to the circle. So the third case is of importance to us because we have already learned about the second case. Now let us discuss the third case in detail. The length of the two tangent drawn from an external point to a circle are equal. Length of the two tangents that are drawn from an external point to the circle are equal. This is what is the theorem. So for proving this theorem, we use the RHS congruency criteria. Basically what I did was I proved these two triangles, triangle 1 and triangle 2, as congruent. Now when I proved these two triangles as congruent, I got to know many results. First of all, this AQ was equal to AP. That was through CPCT I got many results. The first result was AQ was equal to AP. Then I found that angle QAO was equal to angle PAO. Further, I found that angle AOQ is equal to angle AOP. These were the three results that I found from this theorem. Next, so these were the results that I found. Next, what we had, okay. Now, next what we had, the tangents. Next what we had is the type of tangents that can be common to the two circles. दो सर्कल्स के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल. नाउ वी आर सी here 5 cases can be possible. 5 cases means based upon the circles there can be 5 cases which are possible. The case number 1 is this one, when the two circles are separated by a distance. Here I am defining three important things. The first thing I am defining is D. D is called as the distance between the centers. D is called as distance between centers. Okay. The next point that I will be defining is R1. R1 is the radius of one circle. Radius of one circle, and R2 is the radius of another circle. Radius of another circle, of second circle.
ठीक है. These are the two things. These are the three things that I have. These are the three things that I have decided, that I have already defined. Now I will make my conclusion whatever I can on the basis of this result. Now see, if my distance between the centers is greater than the sum of radius, if my distance between the center is greater than the sum of radius, in that case there are four possible tangents. There are four possible tangents. Two of them are called direct tangents. Direct tangents. This one and this one. This one and this one are called as direct tangent. And these two tangents are called as indirect tangents. ट्रांसवर्स टेंजेंट या इनडायरेक्ट टेंजेंट आप बोल सकते हो. These two tangents are called as ट्रांसवर्स टेंजेंट. ठीक है. इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स, और ये जो दोनों हैं उनको अपन डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं, और जो बाकी के दो टेंजेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स या फिर indirect tangent बोलते हैं. Now, is it possible to calculate the length of the direct tangent as well as is it possible to calculate the length of the indirect tangent also? Just think and tell. Is it possible to calculate the length? Direct tangents I think can be possible. Why not indirect tangent? Indirect tangent में क्या problem है भाई? Indirect tangent की length निकालने में क्या problem है? Shrey, is it possible to calculate the length of the direct tangent as well as the length of the indirect tangent? हाँ, take your time. No beta Stuti, when I'm saying that I want to calculate the length of the direct tangent, I agree with your point that actually ideally it should be the length of the direct tangent between the two circles. Your point is valid. When I'm saying that I want to calculate the length of the direct tangent, that means I want this length. अगर ये point A है और ये point B है, तो I want the length of AB. And similarly, if this point is A and this point is C, I want the length of AC. Okay, so this is what I want. Sir, AB की तो सर क्योंकि बोलिए सर AB का तो सर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर वो मिड पॉइंट से एकदम डायरेक्टली ऊपर ही है सर, तो फिर जो दोनों सर्कल के सेंटर्स की जो डिस्टेंस होगी वही उसकी हो जाएगी AB की. क्या बोल रहे हो? AB का क्या बोला आपने? फिर से बताओ जरा. सर AB की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों सर्कल के सेंटर्स की जितनी डिस्टेंस है उतनी होगी. क्यों भाई? सर वो तो नहीं हो सकता ना. एक मिनट पहले इनसे बात तो करूं. क्यों भाई? ऐसा क्यों होगा भाई? बता दो यार, ये तो गलत बात है. सर को नहीं आता तो नहीं बताओगे तुम लोग, है? Forget it. सुने, आर यू देयर? यस सर. आपका क्या विचार है बेटा? क्या लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है? सर सोच रहा हूँ. सोचो जल्दी सोचो. नहीं जल्दी मत सोचो, आराम से सोचो. तब तक मैं कुछ और लोगों का दिमाग खाता हूँ. किससे पूछा जाए भाई? Gupta ji, are you in class? Varanium, what can be the, can I calculate it or can I not calculate it? If you can't answer, just reply me. Sir. Are you Varanium? Is your name Varanium? Wait for your turn. Perhaps she has left the class. That's so sweet of him. That's so sweet of him, huh?
सर अगर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर हो तो हो सकता है। रेडियस बराबर नहीं है। ओके वेरिनियम, जस्ट आंसर मी यस और नो, कैन आई कैलकुलेट इट और कैन आई नॉट कैलकुलेट इट? ओके, योर माइक इज नॉट वर्किंग, जस्ट आंसर मी यस और नो। हाँ जी बताइए। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो फर्स्ट सर्कल है सर, उसमें जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर, उधर से मतलब उस सर्कल के सेंटर से हम लोग लाइन खींचे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लो और लो खींच दिया भाई, लाइन भी खींच दिया, लो परपेंडिकुलर। अरे यार एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं सर, लेकिन उससे भी नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि उधर से फिर दूसरे सर्कल के पॉइंट से हम लोग इस सर्कल में तो एक से राइट लो एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। लो खींच दिया, अब बताओ। नहीं सर, नहीं सर, अभी सर वहां पे जो इंटर बी पॉइंट है सर, उधर से फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दो। कौन से लेकिन पॉइंट, सर फिर हमें कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कौन से पॉइंट से कौन से सर्कल को ज्वाइन करना है भाई? सर। लेकिन फिर भी वहां पे सर दो अननोन रहेंगे ना सर, क्योंकि मैं बोल रहा था कि सर जो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे फर्स्ट सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दो, फिर दूसरे सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट सर, उससे उसको भी सर फर्स्ट सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो फिर सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन फिर उसमें भी दो वेरिएबल्स रहेंगे। ओके मितुल, कैन यू हेल्प मी आउट? मितुल, कैन यू हेल्प मी आउट? Sir, I'm thinking right now. यू आर थिंकिंग राइट? ओ माय गॉड, कितना सोच रहे हो यार, कितना सोच रहे हो यार। सर मे आई ट्राई? यस प्लीज बताइए। सर इसमें हम जैसे इस जील ने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर हम इस सर्कल के जो सेंटर को उस सर्कल दूसरे सर्कल के टेंजेंट से ज्वाइन करें और राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, और फिर हाइपोटेनस की हमने लेंथ निकाल दी। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस की लेंथ? सर मैंने भी सर O1 वही और बोला था, O2 लेकिन तो उधर ज्वाइन दो किया हुआ है, अननोन फिर एक एक करके। हाँ O2 से फिर जो उसका उस सर्कल का जो टेंजेंट है उधर से एक लाइन हमने खींच ली और उस पॉइंट से लेके O1 तक ज्वाइन कर दे तो उस पॉइंट से सर मैंने यही बोला था, लेकिन सर फिर वो उधर दो अननोन रहेंगे ना सर, क्योंकि हमें वो हाइपोटेनस की भी निकालनी है और सर जो टेंजेंट की लेंथ है वो तो निकालनी ही है पहले से। अब बताओ जरा, ये मान लो ये ए बी है और ये वही वाला ए बी है। ये सर O1, नहीं, मैं कह रहा था कि O1 से B तक। नहीं मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं। नाउ कैन आई कैलकुलेट? हाँ सर, कर सकते हो। भाई मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या, अब सुनो, इनफ टाइम हैज बीन गिवन, नाउ सी व्हाट आई हैव डन। दिस इज R2, ठीक है। दिस O1A, द लेंथ ऑफ O1A वाज इक्वल टू R1, ठीक है सर। मैंने क्या किया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये मुझे पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये मुझे पता है। मैंने क्या किया, O2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, O2 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सी आई नो दैट दिस O1A विल बी पैरेलल टू O2B। ये दोनों लाइंस जो हैं, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल होंगे, ठीक है। Now what I did, I dropped a perpendicular from O2. I dropped a perpendicular, एक मिनट रुक जाओ। I dropped a perpendicular from O2 to intersect O1A at any point say X, ठीक है। मैंने O2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि O1A पे, O1A को किसी भी पॉइंट X पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? से यस और नो। नाउ this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, so this angle will also be 90 degree. Fine. So this figure becomes a rectangle.
because the only quadrilateral in which all the angles is 90 degree is either a rectangle or a square. I don't know whether it will be a square or whether it will be a square or not. So I can safely say that this figure will be a rectangle. So if this figure is a rectangle, then what I will have, XA will be equal to R2. So ये जो distance है OX, that will become R1 minus R2. जो distance OX है, that will become OX नहीं, O1X जो distance है, that will become R1 minus R2. और ये जो distance O1 O2 है, this distance O1 O2 will become D. Your distance O1 O2 है, that will become D. So now what I have, I want to calculate the distance of this tangent, that is O2X. So this O2X will be equal to O2X will be equal to square root of R1 minus R2 whole square plus D square. It will be equal to square root of R1 minus R2 whole square plus of D square. Is it clear? सर D square minus R1 plus R2 नहीं होना चाहिए? D square एक second. It will be D square minus, yes, my mistake. It will be D square minus R1 plus R2 whole square. My mistake. It will be D square minus R1 plus R2 whole square. Sorry, minus of R1 minus R2 whole square. My mistake. Okay, it will be D square minus of R1 minus R2 whole square. Is it clear? बोलो भाई, नहीं क्लियर हो अभी तक? यस सर, हो गया। सुना है? क्या हुआ बेटा, आपका कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर आप एक बार बीच वाली फिगर में ड्रॉ करके बता सकते हो, उस वाले में कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा मैंने क्या किया, बीच वाली फिगर में ये चीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे O1 और O2 इस फिगर के हिसाब से if you see, then what you can say that R1 is equal to R2. बेसिकली यहाँ पे R1 is not equal to R2. यहाँ पे एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल इस तरीके का है। एक सर्किल ऐसा है और दूसरा सर्किल इस तरीके का है, एंड दिस इज द केस। चलो, ओके सर, लेट अस मूव अहेड नाउ। एम उसका भी लेंथ इसके इक्वल ही होगा? क्या बोल रहे हो? सर ये जो दोनों डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं उन दोनों का लेंथ इक्वल ही होगा? दोनों का लेंथ इक्वल होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ऑब्वियसली दोनों का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन हम करेंगे तो इन दोनों का लेंथ इक्वल ही होगा। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्ट टेंजेंट्स जो हैं ये किसी एक ही पॉइंट से आ रही होंगी? नहीं कह सकते। नहीं सर, नहीं कह सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये बोला था कि दिस लेंथ इज, सर बोल नहीं सकते? नहीं बोल सकते, हाँ, इसलिए सर, नहीं बोल ही सकते है ना। बेटा। ये लेंथ इक्वल है, यहाँ पे कौन सी लेंथ इक्वल हो रही है? यहाँ पे ये द लेंथ सर वो भी बिटवीन, सर ऐसा नहीं कह सकते कि एल और एम को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कीजिए तो जहाँ पे भी मिलेंगे तो जहां पे भी मिलेंगे, ठीक है, मान लिया एल और एम इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, चलो इसको मान लिया कि एल और एम यहाँ कहीं पे पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो आई कैन नॉट से दैट I cannot say that this PA will be equal to, suppose करो ये PY है, this PA will not be equal to PY, क्योंकि मुझे सिर्फ ये लेंथ के बारे में श्योरिटी है कि ये लेंथ इक्वल होगा, इसके अलावा मैं नहीं कह सकता कि बाकी का लेंथ इक्वल है कि नहीं है। तो मतलब मैं तो ये बोल रहा था, और शायद से हो भी सकता है कि PA जो है वो इक्वल होगा PY के, और PB जो है अगर कोई एक Z दूसरे पे मान ले तो वो भी इक्वल होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं होगा, नहीं होगा, पर वो किसी एक हाफ की तरफ भी हो सकता है।
किसी एक की तरफ भी हो सकता है, इसके ऊपर मत जाओ ज्यादा, रहने दो इसको, इतना ही रहने दो फिलहाल। वैसे ही हम थोड़ा सा ज्यादा चले गए हैं, ठीक है, वैसे ही हम थोड़ा सा ज्यादा चले गए हैं। नेक्स्ट इज, कैन यू, नाउ योर होमवर्क इज, you have to you have to try and calculate the length of this transverse tangent. इस ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। दिस इज योर होमवर्क। सर ट्रांसवर्स टेंजेंट और डायरेक्ट टेंजेंट दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं या फिर डिफरेंस है? एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बट उससे कोई मतलब नहीं है जब आप कैलकुलेशन करेंगे। सी, इट कैन बी डिफरेंट आल्सो, इट कैन बी डिफरेंट आल्सो। वी डोंट हैव एनी थ्योरम दैट सेज दैट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। वी डोंट हैव एनी थ्योरम। Tangent, by definition, tangent is a line that touches the circle at one point. So they can be at the same point, they can be at a different point. ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से they are meeting at the same point, it's fine, but it's not necessary that they should meet at the same point, right? So जब आप indirect tangent को जब भी आप calculate करना, whenever you want, you can do it, but take this as a separate case, right? So this is your homework. सोचना, बताना क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ द केसेस आर वेरी सिंपल। Now the cases are very simple. In this case, what is happening is the two circles are touching each other. That means D will be equal to R1 plus R2. In this case, the two circles are touching each other. That means D will be equal to R1 plus R2. Now here what I will have? I will have total 3 tangents. I'll have total 3 tangents. ठीक है, तो 3 tangent अगर मेरे पास हैं, तो अगर I will have total 3 tangent, that is L, M and N are the 3 tangents. Now there is something very interesting. Now see, we know that if I draw a tangent from an external point to a circle, the length of the tangent is equal, right? If I draw a tangent from an external point to a circle, the length of the tangent is equal. Sir, if this point is x, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको अपन ने p मान ही लिया है, इसको y मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, और इसको अगर थोड़ी देर के लिए c मानते हैं, और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए d। क्या मैंने पॉइंट्स मान लिया, किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज बन रही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनती है। वो ये बनती है कि xp, सर xp is equal to xa is equal to xd, xp is equal to xa is equal to xd. Similarly, yp is equal to yb is equal to yc, yp is equal to yb is equal to yc, yp is equal to yb is equal to yc. These are the 2 interesting things that I am getting here. Further, एक और interesting चीज मुझे मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या मिलती है, देखना जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करना कि सर ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ये तो मुझे पता है, बिकॉज टेंजेंट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। सर ये वाला एंगल भी, सॉरी सर, ये वाला एंगल 90 डिग्री था, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री था। तो अगर मुझे मान लो, now there can be, now see, there, depending upon the question I can have different cases, depending upon the question I can have different cases that कौन सा। Similarly, I can also say, अगर मैं OY को ज्वाइन करता हूँ, I can also say that angle BYO is equal to angle PYO. एंगल BYO is equal to एंगल PYO। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल BYO is equal to एंगल PYO? Just think and tell. Yes sir. No, I want to ask somebody else. Jill, can I say that angle BYO is equal to angle PYO? Yes sir, सर आई थिंक सर श्रेय आपका नाम, सर एक मिनट, श्रेय आपका नाम जील कब से हो गया? हाँ जील बताइए। नहीं सर वो बी पॉइंट उधर है सर, इसीलिए हम कह सकते हैं सर वो टेंजेंट अगर कहीं और होता तो। बी पॉइंट टेंजेंट का पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट टेंजेंट का अच्छा पॉइंट हाँ है। सर, हाँ 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 सर कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं।
Okay, Stuti, beta, can I say that angle BYO is equal to angle PYO? Yes, sir, we can say that. We can say that. Very good. Why we can say that? So because the triangle BYO and PYO will be congruent by Very good. SSS. Very SSS. Okay, chalo. That these two triangles will be congruent, and the congruency. See, यार अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले. यार अभी एक मिनट रुक जाओ. अभी तो देखा था बेटा थोड़ी देर पहले कि ये जो ट्रायंगल है ये वही वाली सिचुएशन तो है जो अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं, जो थ्योरम कल पढ़ा था मैंने, जो कल पढ़ी थी हम लोगों ने थ्योरम, वही सेम सिचुएशन तो है यहाँ पे भी, सेम सिचुएशन तो है वहां पे भी. हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. The two triangles will be similar by RHS congruency criteria. तो अगर RHS congruency criteria, हाँ सर बट OB इज इक्वल टू OP क्योंकि वो रेडियस है, फिर OY जो है वो कॉमन है, और हमने अभी मतलब आपने बताया कि PY और BY जो है वो इक्वल है, तो SSS से भी हो जाएगा ना. बोलो भाई जवाब दो मैडम को. सर पर वो तो हमने ये थ्योरम से हमने वो बताया है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद हम लोग CPCT से बता रहे हैं. कौन सही है, तुम लोग सही हो या मैडम सही है? सर पहले हमें प्रूव करना, उसके बाद उसके रिजल्ट्स बोल सकते हैं. रिजल्ट से प्रूफ उल्टा नहीं चला सकते. देखो यहाँ पे दोनों चीजें बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीजें बोल सकते हैं. दोनों लोग सही हो, तुम लोग भी सही हो, मैडम भी सही है. क्यों तुम लोग सही हो? क्योंकि तुम लोगों ने बेसिक से बोला कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स जो है RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे. मैडम ने क्या किया? मैडम ने इस रिजल्ट को यूज किया. कहाँ गया रिजल्ट? मैडम ने इस रिजल्ट को यूज किया. BY इज इक्वल टू दिस YP. ये भी तो रिजल्ट वहीं से आया ना भाई, ये भी तो रिजल्ट वही से आया था कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट Y और ये YP एंड YB आर द टू टेंजेंट्स. सो बोथ ऑफ यू आर इक्वल, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. सो आई कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. I can say that the two triangles are congruent. अब can I say that this figure is a rectangle? रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, काइट बोल सकते. क्यों भाई रेक्टेंगल क्यों नहीं बोल सकते? मुझे तो ये फिगर रेक्टेंगल बनती हुई दिख रही है. जरूरी थोड़ी ना है. जरूरी नहीं है. प्रूफ करूं? अगर दोनों सर्कल्स एक ही रेडियस के हुए तो होगा रेक्टेंगल. दूसरे सर्कल की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे बेटा, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, OBYP की. हाँ सर, उसके लिए ये क्वाड्रिलेटरल OBYP क्या ये स्क्वायर होगा से यस? क्या ये एक रेक्टेंगल होगा? यस और नो? अगर नो तो गिव मी 2 मिनट्स, आई विल प्रूव इट. और अगर यस देन यू हैव टू प्रूव इट. नहीं समझ में आ रहा? चलो नहीं समझ में आ रहा तो बताता हूं. भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं. ये वाला एंगल 1 मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, और ये वाला एंगल 2 मान लो. कैन आई से बाय CPCT that angle 1 is equal to angle 2? यस सर. Can I say by CPCT that angle 3 is equal to angle 4? यस सर. Can I say that 2 times of angle 1 plus of 2 times of angle 1 plus एक सेकंड रुक जाओ. अच्छा, इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना. 2 times of angle 1 plus okay. For that I have to prove that angle 1 is equal to angle 3, but I don't know whether angle 1 is equal to angle 3 or not. Okay, fine. So I cannot say that this figure is a rectangle. This figure is a rectangle. ये मैं नहीं कह सकता. Point. The point has been taken. This figure is a rectangle. I cannot say this. But yes, using trigonometry, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, using trigonometry I can, अब इतना मुझे पता है, rest of the things I can very easily calculate. I don't have any issue.
ठीक है, so I cannot say whether this figure is a rectangle or not. I was thinking that we can say, but yes, we cannot say. ठीक है, so ये हो तो गया। हम इसमें AD BC बोल सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोलना चाहते हो आप? AD is equals to BC. AD is equal to BC. AD is equal to BC. Yes, you can. No, you have to prove, you have to find the result and then you have to say. You cannot say whether AD will be equal to BC or not. You cannot say. आपको proof Sir, एक मिनट बेटा, एक मिनट। But XA is equal to XD, so I can say that these two. Now, एक केस में आप कह सकते हो, if by any means you can say that XP is equal to YP, then you can say that. Then you can say if XP is equal to YP, then only you can say. There the case was different. पुराने केस में वो जो केस सर इसमें स्टार्टिंग से यही डाउट रहा कि इसमें अगर हम L और M को साथ में वो करें सर, तो फिर तो सिर्फ वो सब्ट्रैक्शन के केस से नहीं हो रहा सर, प्रूव एग्जैक्ट हो रहा है आपको। क्या L और M को क्या करना है सर? आप नेक्स्ट वाली फिगर पे जैसे केस 2 पे सर, उसमें अगर L और M मान लेते कोई एक पॉइंट C पे मिलते हैं, और C नहीं कोई भी S पे मिलते हैं, तो फिर सर SA इज इक्वल्स टू SB बोल सकते हैं और SX इज इक्वल्स टू SC बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ठीक है कर रहे हैं। तो फिर उन दो SA माइनस SB इज इक्वल्स टू SB माइनस SC, तो AD इज इक्वल्स टू C। हाँ, यहाँ से बोल सकते हो, अगर ये दोनों टेंजेंट कहीं जाके मिलते हैं, अगर ये दोनों लाइंस कहीं जाके मिलती हैं, देखो भाई इन्होंने क्या बोला, अगर ये दोनों पॉइंट्स नहीं, अगेन हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो, डेफिनेटली आप बोल सकते हो, उस केस में आप बोल सकते हो। यस, आई एग्री विथ यू। अगर ये दोनों कहीं एक्सटर्नल पॉइंट S पे जाके मिलते हैं, तो आई एम हैविंग SD इज इक्वल टू SC। दिस इज बिकॉज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। देन अगर SA और SB की बात करें, तो आई विल हैव SA इज इक्वल टू SB। अगेन द सेम लॉजिक, बिकॉज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal, दोनों को subtract कर दो, you will have AD is equal to BC. Definitely you can say this. I don't have any issue, you can say this. ठीक है? हाँ, स्तुति was saying something. हाँ, बोलिए स्तुति। नहीं सर, मुझे लगा वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, बट मैंने रीचेक किया तो नहीं हो पाएगा बेटा, वो नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, it was a nice healthy discussion. Thank you everyone for participating in the discussion. अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो शायद अभी तक ये चैप्टर खत्म हो गया होता, और अब मुझे लग रहा है कि शायद आज ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट इज केस 3। केस 3 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज लेस देन द सम ऑफ द रेडियस, दैट मींस द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। If the two circles are intersecting, then there will be no common tangent, and there will be no transverse tangent, but there will be two direct common tangents only. There will be no transverse tangent, rather there will be two direct common tangents only. अब यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी direct common, now see, knowingly or unknowingly, your friend has told a very beautiful thing. देखो, पहले केस में हमने क्या किया था, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे, रेक्टेंगल का कंसेप्ट लगा के हमने उसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया था। बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट। अगर मुझे कोई बोले कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस XY, आई विल हैव लॉट ऑफ इश्यूज इन प्रूविंग दैट। क्यों? क्योंकि सर मैं यहां से, चलो मैंने मान लिया यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने मान लो जैसे पिछले केस में किया था, इन दोनों परपेंडिकुलर्स को मान लो मैंने ज्वाइन भी कर दिया, मैंने इस तरीके से ज्वाइन भी कर दिया। ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है ना भाई। क्या ये डिस्टेंस मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? मुझे ये पता है दिस D इज लेस देन R1 प्लस R2, बट आई डोंट नो दिस D। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन वो है जो आपके दोस्त ने अभी बताया। आपके दोस्त ने ये बोला कि अच्छा सर
ठीक है, चलो आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप नहीं बता पा रहे हो कोई बात नहीं, आप भूल गए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं सर, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो ये दोनों लाइंस मिलेंगी ना भाई। टेंजेंट की बात कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो श्योर है कि दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं मिलेंगी। उस पॉइंट को मैंने एस मान लिया। सर आई कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एस वाई, आई कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एस वाई। हाँ, मेरे पास एक अननोन आएगा, ठीक है सर। आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एस एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई विल गेट द लेंथ ऑफ एक्स वाई। बिलीव मी, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। आई एम सरप्राइज्ड व्हाई दोज हु वेर इन द IJSO बैच लास्ट ईयर they have not answered this question कि how will you calculate the length. I'm surprised and I'm very unhappy with them because I had taught these things. I had taught these things. Anyways, the next thing is case 4, when R1 D is equal to R1 minus R2, जो distance D है वो दोनों radiuses का difference है। The distance between the center is the difference between the difference of the two radius. In this case क्या होगा, the two circles are touching internally, तो मेरे पास एक ही common tangent आएगा, एक ही common tangent आ रहा है, तो इसके लेंथ की कोई बात नहीं होगी। Last, when D is less than R1, when the circle second lies totally inside the circle 1, in that case there is no common tangent. तो बेटा हमने क्या पढ़ा सर, हमने ये पढ़ा, एक मिनट रुक जाओ सर, हमने ये पढ़ा कि 4 टेंजेंट से लेके एक केस में 4 कॉमन टेंजेंट थे और आखिरी वाले केस में 2 कॉमन टेंजेंट थे। पहले केस में 4 कॉमन टेंजेंट है, देख लो भाई एक बार, देख लेते कितने कितने कॉमन टेंजेंट है, फिर बताऊंगा सवाल कैसे बनेगा। सर पहले केस में 4 कॉमन टेंजेंट थे, उसके केस में 3, उसके बाद वाले केस में 3 कॉमन टेंजेंट थे, उसके बाद वाले केस में 2 कॉमन टेंजेंट आए, उसके बाद वाले केस में 1 कॉमन टेंजेंट आया और उसके बाद वाले केस में 0 कॉमन टेंजेंट आया। 4 3 2 1 0, एज सिंपल एज दैट। ये तो एपी बन गया भाई, 4 3 2 1 0। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक। हाँ बोलिए सर। जो अभी इसके पहले वाले केस में हमने वो किया SX और SY माइनस SX माइनस SY किया, तो फिर सर वो सेम चीज भी तो फर्स्ट केस में हो सकती है। सेम चीज यार, फर्स्ट केस के बारे में आई वाज नॉट श्योर कि वो सेम चीज अपन कर सकते हैं। मैं तब भी वही बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो ला एक बार देख लेते हैं, ला एक बार देख लेते हैं। यस, इट कैन बी देयर, इट कैन बी देयर, दैट कैन बी देयर। और हो सकता है उससे भी हमारी जो वैल्यू आए वो वही है। अगर आपको वो पॉइंट एस, नाउ सी दिस कंसेप्ट विल बी वेरी मच यूजफुल इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में, या अगर आपको मान लो इन दोनों लाइंस का, इन दोनों लाइन के अगर आपको इक्वेशन मालूम है, सी especially if you will study coordinate geometry in 11th standard, now you can very well use this concept, you can very well use this concept। आपको इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल जाएगा, इक्वेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं। आप सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की दूरी निकाल सकते हो यूजिंग द राइट एंगल RHS रूल, यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल। यू कैन कैलकुलेट द लेंथ, यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। यस, आई डोंट हैव एनी इशू, यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। और फिर दोनों लेंथ को सबट्रैक्ट करके यू कैन कैलकुलेट दिस। यस यू कैन डू, yes you can do there। this case needed some more analysis। मैं अभी बोलने ही वाला था कि एक बार इसको भी एनालाइज करें, because if it is valid here, if it was valid there, it has to be valid here also। yes, it is equally valid here। but इस केस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी श्रेय, इस केस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी बेटा कि हमें ये नहीं पता है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। I can say that these two tangent length, this xy, and if this is say ZA, this xy will be equal to ZA। लेकिन अगर मुझे लेंथ निकालने के लिए कोई बोलेगा तो लेंथ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा।
लेंथ निकालना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अभी हमने वो चीजें नहीं पढ़ी है, राइट? So this Yes, was sir. this was the case. So finally I am having 4 3 2 1 0. अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल आपसे यही पूछा जाएगा सर कि मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एनटीएससी में शायद आपसे पूछ लें, वो भी स्टेज 2 में, कि भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, what is the length of the direct common tangent, what is the length of the transverse tangent, वो आपसे एनटीएससी स्टेज 2 में पूछेंगे, स्टेज 1 में तो वो भी नहीं पूछेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर डिफरेंट पर्सन्स विल स्टार्ट सेलिंग देयर आइडियाज दैट हम लोग एनटीएससी स्टेज, हमारे यहाँ से एनटीएससी स्टेज 2 के सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट एनीवन सॉरी, बट द आइडिया इज वेरी सिंपल। भाई हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया, जील आप बताओ, जो हमने केस 1 का जो फॉर्मूला डिराइव किया, क्या हमने कोई रॉकेट साइंस पढ़ा वहां पे? नहीं सर। भाई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। क्या मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और कुछ लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, और तो कुछ नहीं लगाया ना भाई। अब अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज ए 11th क्लास कंसेप्ट, तो आई एम द बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। Yes, this concept is taught in 11th standard, but this is not 11th, this is not 11th class concept. I know this concept is taught in 11th standard, but ये concept 11th standard ये 11th class का नहीं है, ये concept आपके लेवल का है मेरे दोस्त। या तो बताओ मेरे को मैंने कुछ अलग यूज किया हो तो। आप लोग के पास 20 सेकंड है, बता दो अगर कुछ अलग यूज किया तो, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। चलो भाई ये सवाल करके दिखा दो जरा मेरे को। अच्छा मेरा टाइमर नहीं है मेरे पास, ये सवाल करके दिखाओ, 1 मिनट का समय है आपके पास। कोई भी कोई भी थ्योरम, कोई भी फॉर्मूला याद करके मत लगाना, वही फॉर्मूला लगाना जो आपको पता हो। बेसिक से सवाल करना बेटा, द जर्नी विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। आंसर वेरी गुड। भाई आप तो फिर वो स्क्वायर एक बनना मिनट एक चाहिए मिनट उसका एक मतलब। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट वो स्क्वायर हो तो हो सकता है। अरे एक मिनट रुक जा यार, उसको बोलने तो दो यार। भाई आपके दोस्त ने ये पूछा कि सर यहाँ पे तो सरकमस्क्राइब है, मतलब कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। नहीं बेटा, सारे एंगल्स आपने अपने दिमाग में अपने एक चीज बैठा के रखी है कि क्वाड्रिलेटरल मतलब ऑल दैट एंगल्स आर 90 डिग्री। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री। It is not necessary that all the angles will be 90 degree. This is the case. सर This is पर the इधर case. तो सर क्या फिगर पे मत सर जाओ, पर फिगर पे मत जाओ। मैंने पहले भी बताया है कि ज्योमेट्री में प्रूफ लिखने के टाइम पे इफ आई एम राइटिंग माय नेम इज ANMM, that means I have to give my Aadhaar card number and my PAN card number to support that. ज्योमेट्री इज जस्ट लाइक द कोर्ट ऑफ लॉ। वहां पे हर चीज को बताने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है। आप बोल रहे हो कि सर यहाँ ये एंगल 90 डिग्री जैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? लगने से कुछ नहीं होता है, लगने से ज्योमेट्री सॉल्व नहीं होती है। हो गया? कमान यार, हो जाना चाहिए अब तक तो। पीएस की लेंथ निकालनी है, पीएस की लेंथ निकालनी है भाई। ओके चलो देखते हैं।
What was the length of QR that is being given? Because I cannot see the question. 15 centimeter. 16 or 15? 15. 15. Okay. So this will be equal to x. Okay. So this is equal to 3 plus x. So if this is equal to 3 plus x, RS की लेंथ कितनी दी हुई है? 14. So this is equal to 11 minus x. हाँ सर 11 minus x. This is also equal to 6. ठीक है. x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया और ये सारी चीजें कैंसिल हो गई. हाँ भाई, अब क्या करें? ये तो कर दिया मैंने, यहाँ से तो सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं. अब क्या किया जाए? क्या लेंथ नहीं निकल पाएगा? सर क्वेश्चन दिया तो निकलेगा ना. क्वेश्चन दिया है तो निकलेगा ही. सही बात है, क्वेश्चन दिया है तो निकलेगा ही. मुझे किसकी लेंथ निकालनी है? पीएस की लेंथ निकालनी है. अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द लेंथ ऑफ पीएस विल बी इक्वल टू पीए प्लस. अच्छा रुको, सोचने दो जरा, पूछने दो भाई. कृष्णा बेटा, प्रॉब्लम ये आ रही है. कृष्णा यू देयर? बेटा प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो क्वेश्चन में क्या समस्या आ रही है. मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सारे के सारे एक्स तो कैंसिल हो जा रहे हैं. नाउ व्हाट शुड आई डू? कृष्णा व्हाट शुड आई डू बेटा? Krishna, she's not there, I think. You have no idea. Okay, then we should get idea. Anybody else except Shrey, Sunay and Stuti? Anybody else who wants to answer this? Charles, you want to help me out? क्या हो गया यार, आज आप लोग क्या माइक वाइक काम नहीं कर रहा है क्या? You guys are not answering. Eric, can you help me out? Forget it. They're not helping me. लोग का मन ही नहीं है हेल्प करने का. शुभम, can you help me? चलो ठीक है भाई, छोड़ दो. लगता है इन लोगों के माइक्स खराब हो गए हैं, या तो शायद मेरी तरफ से आवाज नहीं आ रही. भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर. ठीक है, तो लगता है इन लोगों के माइक खराब हो गए. रिप्लाई आना शुरू हुआ, लगता है माइक ठीक हो गया. हाँ जी, चलिए. ओ माय गॉड, डोंट बी हेल्पलेस. अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये क्या था. क्वेश्चन सामने सामने सॉल्व हुआ दिख रहा है. बेटा एक बात बताओ जील, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी. जील, कैन आई राइट पीएस एज, जील आई एम टॉकिंग टू यू. हाँ जील, कैन आई राइट दिस पीएस एज पीए प्लस एएस? Yes sir. Yes sir. Further, Jill, can I write PA as equal to X and SX as SA as equal to 11 minus X? Yes sir or no 11 sir? minus x. अभी तो किया यार, इसको x माना था, ये x हो गया because the length of the tangent from two external points is equal. PQ की लेंथ 12 थी तो BQ की लेंथ 12 माइनस x हो गई. सिमिलरली BQ की लेंथ 12 माइनस x तो CQ की लेंथ विल बी 12 माइनस x. RQ Yes, की sir. लेंथ was 15 and CQ length was 12 minus x, so RC length will be 12 plus x. If RC length is 12 plus x, RD length will be 3 plus x. If RD length is 3 plus x, SD length will be 11 minus x. If SD length is 11 minus x, SA length will be 11 minus x. Yes, Length of tangent from 2 points are equal. अब दोनों को ऐड कर दो यार. PS will be equal to x plus 11 minus x, which is equal to 11. कौन सा रॉकेट साइंस है भाई?
कोई रॉकेट साइंस है यहाँ पे? बोलो यार। नहीं सर। नो सर। तो फिर हेल्पलेस हो गए हैं ये। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। You did not got it. Okay. Beta, what I have done is I have used the theorem that tangent drawn from an external point to a circle, length of the tangent drawn from an external point to a circle is equal. Using the same thing, I found that PA will be equal to PB, BQ will be equal to QC, RC will be equal to DR, and SD will be equal to SA. मैंने क्या किया बेटा, मैंने PA की लेंथ को x मान लिया, तो PB की लेंथ भी x हो जाएगी. So फिर BQ की लेंथ will be 12 minus x, QC की लेंथ will also be 12 minus x. Now the length of RC will be equal to 3 plus x, and the length of RD will also be equal to 3 plus x. The length of SD will be equal to 11 minus x, and the length of SA will be equal to 11 minus x. सबको ऐड कर दिया. PS will be equal to PA plus SA, which is equal to S plus x plus 11 minus x, that is equal to 11. Fine. I hope I got it. I hope you guys got it. चलिए यहाँ आइए. O is center of the circle. 40 degrees. Okay. O is center of the circle and PA and PB are tangent. If angle PAB is equal to 70 degree, then find angle APB. 40 degree. Are you sure? Yes, sir, 40. Yes, sir, sure. चलो देख लेते हैं. सर सॉल्व तो करने दो. चलो करो ना. This is the center. मान लिया this is the center and A and B are lying like this. Angle PAB is equal to 70 degree. I want to find angle APB. What will be the value of angle APB? ठीक है भाई. अब O is the center. अच्छा इस फिगर में कोई गड़बड़ है क्या? Is there any mistake? उस तरफ होना चाहिए AB. अगर इस तरफ लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर इस तरफ वो काइट ही नहीं बन रहा तो कहाँ तो इस तरफ से काइट नहीं बन रहा है. वेल देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि एक तो ठीक है ये एंगल काइट तो बन रहा है, बट दूसरी प्रॉब्लम डिग्री नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली. सुना है क्या बोला आपने, एक बार फिर से बताओ. सर जो टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा है वो 70 डिग्री से भी छोटा बन रहा है. वेरी गुड. See the problem that I am facing here is angle PAB is equal to 70 degree and at the same time angle OAP is equal to 90 degree. तो ये वाला angle OAB कितना हुआ? -20 degree. Are you kidding me? -20 degree. एंगल कभी निगेटिव में होता है क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? This is a mistake that is very common. मैंने क्या किया, मैंने फिगर को बनाया, मैंने O को इस तरीके से ले लिया. Technically, according to the question, my figure is fine. But technically, my figure is incorrect. Why my figure is incorrect? Because my dear friend, angle OAP
is equal to 90 degree because radius is perpendicular to the tangent and at the same time angle BAP is equal to 70 degree. This is not possible as per the figure. This is not possible as per the figure. So the only difference that I need to do here is, the only thing that I need to do here is इस O को यहां ले आओ. बात खत्म, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन हो गया मेरा. इसको, इस O को यहां ले आओ, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए गायब कर दो. ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है. तो सर ये वाला एंगल कितना होगा? 20 डिग्री. ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कोई बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा? 140 डिग्री. 140 degree. Now I know that angle AOB plus angle ABP is equal to 180 degree. ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. फर्दर आई नो दैट एंगल AOB is equal to 40 डिग्री. So angle ABP is equal to 180 degree minus of 140 degree, which is nothing but 40 degree. Which is nothing but 40 degree. बात समझ में आ गई? सर पर इसकी जगह हम लोग दूसरा वो थ्योरम यूज कर सकते हैं कि टू टेंजेंट्स. कर सकते हो. मेरे को वो थ्योरम अभी स्टैक नहीं किया. See, you can solve the question in any manner, in whatever manner you want, you can solve the question. There is no problem in it. But the thing is, question बनना चाहिए. बात यहाँ पे यह है कि कोई भी फंडामेंटल एरर मत करो. ये जो पहली फिगर थी, जो O पॉइंट था, इसको O डैश ले लो. ये जो O डैश पॉइंट था, that was a fundamentally incorrect figure. This is what I want to tell you. हो सकता है शायद आप जो फॉर्मूले से यूज कर रहे होगे, हो सकता है आप जो फॉर्मूले से यूज कर रहे हो वहां पे आप इस फंडामेंटल मिस्टेक को नहीं पहचान पाओ. माय डियर फ्रेंड्स, my aim is very simple. Let me tell you one frank thing. My aim is very simple, irrespective of आप लोगों का पेपर होगा या नहीं होगा. My aim is very simple. I'm not focusing on 70 out of 80. I'm focusing on 80 out of 80. तो 80 out of 80 लाने के लिए इस मिस्टेक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. अगर आपने इस मिस्टेक के ऊपर वर्क नहीं किया, इस मिस्टेक के ऊपर आपने वर्क नहीं किया, आप पहली वाली फिगर बना के आ गए और मेरे जैसा सिर्फ फिरा एग्जामिनर होगा, मार्क्स काट लेगा. अभी होने दो सब्जेक्टिव पेपर, बताऊंगा मैं कहां और कैसे कैसे मार्क्स काटता हूं. मार्क्स काट लेंगे. योर टीचर्स विल डिडक्ट योर मार्क्स. तो दिस इज द थिंग. फॉर्मूला यूज करके यू कैन वेरी वेल से दैट नो, नॉट ए इशू. ओके, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर. सर हम ऐसा कर सकते कि पी से हम लोग ओ को ज्वाइन कर दे सर, तो फिर वो बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा. उससे क्या होगा? एंगल निकालना यार, एक नंबर का सवाल आएगा. क्यों इतना रिसर्च करना है? पी से ओ को क्यों ज्वाइन करना है जब सीधे सीधे क्वेश्चन हो रहा है? तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो सर. बोलिए. सर आपने लिखा है एंगल AOB इक्वल्स टू ABP. सर एंगल ABP थोड़ी ना होगा, APB होगा ना. कौन सा AOB इज इक्वल टू APB कहाँ लिखा है मैंने भाई? सर इक्वल्स टू नहीं, वो जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये वाली AOB. हाँ सर, उधर APB होना चाहिए, ABP नहीं. AOB, अच्छा हाँ ठीक है. AOB प्लस APB, AOB प्लस APB, ठीक है. और कोई दिक्कत? भाई ये एंगल, दोनों एंगल 180 डिग्री क्यों होंगे? बिकॉज सर एंगल OAP एंड एंगल OBP आर 90 डिग्री और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स का सम कितना होगा भाई? 180 ही तो होगा. वही तो किया है और क्या किया? ठीक है ना? समझ में आ गई बात? हाँ सर. चलो
ठीक है भाई, टाइम भी हो गया, ज्यादा ही हो गया। ओह माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप योर सेशन नाउ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टर्न। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, आस्क योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ नहीं, check your progress and other questions. Please start solving, check your progress and other questions. Tomorrow we have a doubt class. Tomorrow we have a doubt class. Day after tomorrow we have a combined class. In that day, in that class what I will be doing is I will discuss some of the questions of similar triangles, as well as I will discuss one chapter of mental ability. That class will be held up to 7:30. ठीक है, 6 बजे से क्लास है, तो वो क्लास 7:30 को होगी। ऑन संडे देयर वोंट बी एनी क्लास। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।